Okay, see, in the last lecture, we have seen about the voltaic or galvanic cell. There are two types of the galvanic or voltaic cell. The first one is a primary galvanic cell, and second one is a secondary galvanic cell. Primary galvanic cell or voltaic cell means what? The cell which are not chargeable, the cell which cannot recharge are called as the primary galvanic cell. And cell which can be recharged and used again and again are called as the secondary galvanic cell. And we have seen one example of primary galvanic cell, that is dry cell. And also we have seen one example of secondary galvanic cell, that is lead accumulator. Okay, so this much part we have done in the last lecture. Now today we will be doing the more example of primary cell and secondary cell, and in that the first one I'll start with, that is nickel, cadmium, nickel, cadmium, or NiCad, nickel, cadmium, or it can be also called as the NiCad storage cell. You can call it as a nickel, cadmium, or nickel symbol is Ni. And for cadmium, they're using what? CAD, CAD. So nickel, cadmium, and storage cell. Now, first of all, this is a secondary cell. This is a secondary cell. Secondary cell means what? This is chargeable. Chargeable means what? This cell can be recharged. इस सेल को आप रिचार्ज कर सकते हो और रिचार्ज करने के बाद बार बार यूज भी कर सकते हो. तो हमारा निकेल कैडमियम सेल जो है वो चार्जेबल है. और चार्जेबल है इसलिए क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी स्टोर. चार्जिंग करते समय क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टोरेज सेल. तो जो भी हमारे सेल चार्जेबल होते हैं उनको चार्ज करके रखना, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखना है, इसलिए उनके लिए क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं? स्टोरेज सेल. करेक्ट. सो इट इज अ सेकेंडरी सेल, ये चार्जेबल सेल है. Now in this cell, the here, and they come under the category of which cell? ड्राई सेल. ये जो हमारा सेल है वो कौन कैटेगरी में? ड्राई. ड्राई का मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में रहेगा. सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में रहेगा और इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट रहेगा. So this cell come under the category of what? Dry cell. मतलब सेकेंडरी सेल है बट ड्राई है, मतलब अंदर का जो कंटेंट है वो पेस्ट के फॉर्म में, इसलिए हम ड्राई सेल बोलेंगे. देन हियर इन दैट केस एनोड जो हमारा रहेगा, एनोड, इस सेल में जो हमारा एनोड रहेगा, एनोड इज अ कैडमियम मेटल. एनोड इज अ कैडमियम मेटल. ये हमारा एनोड है. और यहाँ पे जो कैथोड रहेगा, कैथोड इज अ NiO2. NiO2 is called as what? It is called as a nickel oxide. Nickel oxide, and this nickel oxide will act as a cathode. और निकेल ऑक्साइड जो हमारा रहेगा, निकेल ऑक्साइड इज सपोर्टेड ऑन निकेल, मतलब निकल मेटल है और इस मेटल के ऊपर किसका कोटिंग दिया रहेगा? NiO2 का कोटिंग दिया रहेगा. सो निकेल ऑक्साइड इज सपोर्टेड ऑन Ni और ये एक्ट करेगा कैथोड. और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा यहाँ पे, मतलब एनोड और कैथोड जो सॉल्यूशन हम डीप करेंगे,
हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा बेसिक, मतलब अल्कली रहेगा. अल्कली मतलब व्हाट? आइदर आई कैन से NaOH or I can say KOH, and NaOH and KOH can be called as a alkali. यहाँ पे अल्कली है. तो ये हम देखो यहाँ पे डायग्राम वगैरह नहीं दिया, इसलिए हमें डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है. खाली आपको मालूम होना चाहिए कि निकेल कैडमियम इज अ सेकेंडरी सेल, ये चार्जेबल है. Then it comes under which category? Dry cell. Anode is a cadmium metal. Cathode is a nickel oxide supported on the nickel. And electrolyte is the alkali. Alkali मतलब which solution? We can say basic solution. ये हमारा construction रहेगा. Now we'll write down the first here, the reaction taking place at anode. Reaction taking place at anode. हमारा anode पे कौन सा reaction होगा? तो anode कौन सा metal है? Cadmium है. Cadmium CD. Cadmium. अभी कैडमियम जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कोई बोल सकता है मुझे? कैडमियम जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कैडमियम 2+. करेक्ट. तो कैडमियम ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? कैडमियम 2+. और एक कैडमियम 2+. 1 minute, I'll just write down this reaction on some other page also. 1 minute. तो मैं एक पेज पे रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, खाली हमें हेल्प करने के लिए. कैडमियम क्या प्रोड्यूस करेगा? कैडमियम विल प्रोड्यूस कैडमियम 2+. तो कैडमियम हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है. करेक्ट. कैडमियम गिव्स यू कैडमियम 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और एक कैडमियम 2+ फॉर्म होने के बाद, कैडमियम आयन फॉर्म होने के बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइट बेसिक है. बेसिक मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयन है? OH-. कौन से आयन है? OH-. तो ये हमारा कैडमियम आयन फॉर्म होने के बाद OH- के साथ रिएक्ट करेगा और क्या मिलेगा हमें? CdOH twice. CdOH twice. Now can balance the equation. CD1 OH twice, so 2OH. So add this reaction. So your reaction will be here. See this CD2+ and this CD2+ will get cancelled. So what is here? Overall reaction CD cadmium 2OH- gives you CdOH twice plus 2 इलेक्ट्रॉन. ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये हमारा देखो कैडमियम ऑक्सीडाइज करके प्रोड्यूस करेगा कैडमियम आयन. कैडमियम आयन जो सॉल्यूशन किसका? बेसिक है, मतलब OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड. सो आई विल जस्ट राइट डायरेक्ट रिएक्शन हियर दैट कैडमियम कंबाइंस विद OH gives you cadmium hydroxide. Now cadmium is a metal in the which state? Solid. OH- ions are in the which state? Aqueous. और ये जो हमारा कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये कौन से फॉर्म में रहेगा? सॉलिड एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. आप बैलेंस कर सकते हो. देखो कैडमियम 1 2OH. Charge on the left hand side is what? -2. And charge on the right hand side is also -2. ये हमारा एनोड का रिएक्शन है. And we know that reaction taking place at anode is oxidation. ये हमारा oxidation reaction. Okay, now we'll write down the reaction taking place at cathode. Cathode पे कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन. अभी कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखना है देखो, मैं अगेन आई जस्ट शो इट इन द डिटेल. ये हमारा एनोड का रिएक्शन था. ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है बट जस्ट समझने के लिए. एनोड का रिएक्शन है. एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? आपको पेज पे जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? यस सर. ओके हाँ ठीक है चालेल. सो एनोड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. देन कैथोड पे देखो. कैथोड रिडक्शन. अभी कैथोड कौन सा हमारा कैथोड है? NiO2 दैट इज निकेल ऑक्साइड इज सपोर्टेड ऑन द निकेल. मतलब निकेल के मेटल के ऊपर निकेल ऑक्साइड का कोटिंग दिया हुआ है और ये हमारा कैथोड. करेक्ट. तो आई जस्ट राइट डाउन हियर कैथोड
O2 in the solid state. लेकिन रिएक्शन कैसे होगा देखो, सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो कैथोड पे कोई तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, इसलिए कैथोड पे रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा देखो, सबसे पहले कैथोड पे रिएक्शन स्टार्ट होगा कैसे, तो एक्चुअली हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशंस है, वाटर। वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस एंड OH माइनस। अभी तुम बोलोगे यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन कैसे आया, मतलब वाटर कैसे आया, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, अल्कली, अल्कली मतलब NaOH और KOH एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो NaOH और KOH को वाटर में डिसॉल्व किया, मतलब NaOH KOH भी है और हमारे पास वाटर भी है। तो ये जो वाटर है वो डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। और ये जो H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, H फॉर्म करेगा H। So H plus will gain electron to form H, correct? और 2H plus will gain 2 electron to gives you what? H2। क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और ये हाइड्रोजन गैस जो हमें मिल रहा है वो क्या करेगा, NiO2 का रिडक्शन, बिकॉज कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, करेक्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और NiO2 का रिडक्शन होके हमें क्या मिलेगा, Na, क्या मिलेगा, Na, और वो Na+2 फॉर्म करेगा, और Na+2 कंबाइन विथ OH। तो हमें डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं NiOH ट्वाइस, NiOH ट्वाइस। अभी रिडक्शन कैसे देखो, यहाँ पे NiO2 में मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूं, NiO2 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, X +2 into -2 equal to 0, X minus 4 equal to 0, so X is equal to +4। मतलब NiO2 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और यहाँ पे NiOH ट्वाइस में 2 इधर जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। मतलब Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन इधर +4 है, और यहाँ पे +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो देखो रिएक्शन कैसे था, वाटर विल फॉर्म H प्लस एंड OH माइनस आयन, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, H2, और H2 NiO2 का रिडक्शन करेगा। बैलेंस करो इक्वेशन को, Ni1 O2 H2, तो यहाँ पे O2 H2, ये H2 मुझे यहाँ से मिला तो ये भी बैलेंस है, और H प्लस मुझे यहाँ से मिला तो यहाँ पे कितने H प्लस है, 2। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 H प्लस फॉर्म। तो अभी इनको मैं ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद दिस 2H प्लस एंड दिस 2H प्लस विल गेट कैंसिल, एरो के बाद एरो के पहले, H2 एंड H2 विल गेट कैंसिल, एरो के बाद एरो के पहले, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे देखो, NiO2 ये +2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, NiO2 प्लस 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, NiOH ट्वाइस, NiOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस, ये हमारा कैथोड का रिएक्शन। तो दिस इज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। बैलेंस कर सकते हो आप, लेफ्ट सारे आइटम तो बैलेंस है, Ni1 O2, और ये O2 4 है, O2 and O2 4 है, H2 2 4, 2H and 2H, चार्ज -2, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, -2। तो हमारा कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस है, करेक्ट। तो ये हमारा कैथोड रिएक्शन। तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे कैथोड रिएक्शन लिख देता हूँ, NiO2 इन द सॉलिड स्टेट प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, NiOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस इज अ कैथोड रिएक्शन, इज अ कैथोड रिएक्शन। तो यहाँ पे जो NiO2 है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, NiOH2 ये जो कंटेंट हमारा है वो सॉलिड स्टेट में है, और OH माइनस आयंस एक्वियस स्टेट। नाउ वी कैन ऐड बोथ द इक्वेशंस।
तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहाँ पे कैडमियम का चार्ज बढ़ रहा है, और ये हमारा रिडक्शन है जहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो ऐड कैसे होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे रिलीज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पे गेन हो रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे। सो वॉट एवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिलीज एट द एनोड, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन एट द कैथोड, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 2OH माइनस है एरो के पहले, और यहाँ पे 2OH माइनस है एरो के बाद, वो भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो फिर मेरा रिएक्शन क्या आएगा, देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, सेल रिएक्शन जिसे हम लोग बोलेंगे सेल रिएक्शन। कैडमियम which is the anode, NiO2 which is a cathode, plus 2H2O in the liquid state gives you CdOH twice ये in the solid state plus NiOH twice in the solid state। ये हमारा सेल रिएक्शन, ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ये मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया था यहाँ पे, ये खाली आपको समझने के लिए था। एग्जाम में ऐसा मतलब नहीं लिखना है, खाली डायरेक्टली आप एग्जाम में क्या लिखोगे, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा, सेल रिएक्शन। ओके, ये हमारा सेल रिएक्शन। अब ये सेल रिवर्सिबल क्यों है, ये सेल चार्जेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन द विच स्टेट, सॉलिड, NiOH twice also in the which state, so in दोनों solid state में। okay, so यहाँ पे I'll just write down here the reaction product at each electrode, reaction product at each electrode is solid that adheres to electrode surface। मतलब हमें ये जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकेल हाइड्रोक्साइड, दोनों सॉलिड स्टेट में, और दोनों सॉलिड स्टेट में होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोड को चिपक के रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर स्टिक होके रहेंगे, इलेक्ट्रोड से बाजू में नहीं हट जाएंगे। तो ये दोनों भी जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रोड को अटैच है, इलेक्ट्रोडच्या वरती चिकटलेला आहे, ते बाजूला होऊ शकत नाही। दे आर अडेल्स टू द इलेक्ट्रोड सरफेस, दे आर अडेल्स टू द इलेक्ट्रोड सरफेस, करेक्ट। एंड therefore the cell can be recharged, therefore the cell can be recharged, इसलिए हम लोग सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, सेल कैन बी रिचार्ज। ओके, उसके बाद ये जो हमारा सेल है इसका वोल्टेज कितना है, देखो द सेल पोटेंशियल, मतलब इस सेल का जो वोल्टेज है, इस सेल का जो वोल्टेज है, द सेल पोटेंशियल इज 1.4 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 1.4 वोल्ट, करेक्ट। दूसरा उसका एडवांटेज क्या है, दिस सेल हैज longer life, this cell has longer life than ड्राई सेल। जो लास्ट लेक्चर में हमने ड्राई सेल किया था, जो हमारे बैटरी में, टॉर्च में, जो एवर्ट निपॉन के जो सेल होते हैं, वो उनके कंपैरिजन में इसका लाइफ थोड़ा ज्यादा है। सो दिस सेल हैज अ लॉन्गर लाइफ देन ड्राई सेल। एंड इसके यूजेस कहाँ पे करोगे आप यूजेस, व्हाट आर द यूजेस है, द फर्स्ट वी कैन से द यूजेस, they are used in electronic watches, they are used in electronic watches, they are used in calculators, they are used in photographic equipment, they are used in photographic
इक्विपमेंट, ये उनकी यूजेस है। ओके, तो ये हमारा निकेल कैडमियम सेल। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं, देखो nickel cadmium cell is also called as the NiCad, and it is a which type of the cell? Storage cell. Storage क्यों? बिकॉज ये सेल हम चार्ज करेंगे। चार्ज करेंगे मतलब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ये हमारा सेकेंडरी सेल है, चार्जेबल सेल है। कौन से कैटेगरी में आ रहा है? ड्राई सेल की कैटेगरी में आ रहा है। एनोड हमारा कैडमियम मेटल है, कैथोड हमारा NiO2 है जो Na के ऊपर सपोर्टेड है, और इलेक्ट्रोलाइट हमारे अल्कली है, NaOH और KOH। ये हमारा एनोड रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, CD का चार्ज बढ़ रहा है CD प्लस, यहाँ पे CD का चार्ज है 0, यहाँ पे CD का चार्ज है +2। NiO2 का यहाँ पे चार्ज है +4 और यहाँ पे चार्ज है +2, ये इसका रिडक्शन हो रहा है। और सेल रिएक्शन है। ये सेल रिवर्सिबल क्यों है? बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, दे अडेयर्स टू द इलेक्ट्रोड सरफेस, देयरफॉर दे कैन बी, सेल कैन बी रिचार्ज। इस सेल का वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 1.4 वोल्ट, एंड द सेल हैज अ लॉन्गर लाइफ देन द ड्राई सेल। मतलब हमारे नॉर्मल सेल के कंपैरिजन इसका लाइफ थोड़ा ज्यादा है। एंड व्हाट आर द यूजेस? It is used in the electronic watches, it is used in the calculators, and they are used in the photographic equipment। अलग अलग जगह हम लोग इनको यूज कर सकते। ओके, तो ये हमारा एक गैल्वानिक सेल हुआ जो सेकेंडरी गैल्वानिक सेल था। ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है क्या? डाउट है किसी को? यस प्लीज, एनीवन हैज एनी डाउट और डिफिकल्टी वांट टू आस्क मी अबाउट दिस? No, sir. Okay, ठीक है। Now I'll go for the next one. The next battery I can say here, that is mercury battery, mercury battery। Okay, now here ये जो बैटरी है एक्चुअली, मतलब अपने टेक्स्ट बुक में उन्होंने सेकेंडरी बोला, लेकिन एक्चुअली ये जो बैटरी मर्क्यूरी बैटरी है ये प्राइमरी है। इट इज अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी सेल का मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट चार्जेबल, हम इसे चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल। सेकेंड, एनोड कौन रहेगा यहाँ पे? एनोड, एनोड इज अ जिंक, zinc, and here I can say the zinc is amalgamated with mercury। मतलब हमारा यहाँ पे जो एनोड है, एनोड कौन रहेगा? जिंक रहेगा। हमारा एनोड जिंक रहेगा, और जो जिंक है, जिंक को क्या करेंगे हम लोग? जिंक के ऊपर मर्क्यूरी का कोटिंग देंगे। एंड वी नो दैट एनी मेटल व्हेन कंबाइंड विद द मर्क्यूरी, देन व्हाटएवर द कंपाउंड वी गेट आर कॉल्ड एज अमालगम। अपने ऑर्गेनिक में किया होगा सोडियम अमालगम, सोडियम विद मर्क्यूरी, जिंक अमालगम, जिंक विद मर्क्यूरी, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैसे यहाँ पे जिंक को हम लोग मर्क्यूरी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? जिंक अमालगम। एंड जिंक अमालगम आर कॉल्ड एज व्हाट? अमालगमेटेड कंपाउंड। तो हमारा जिंक जो है हम लोग मर्क्यूरी के साथ मिक्स कर रहे हैं, या जिंक के ऊपर मर्क्यूरी का कोटिंग। एनोड, हमारा एनोड जिंक है, लेकिन जिंक कैसा है? अमालगमेटेड जिंक। कैथोड, कैथोड जो हमारा यहाँ पे है, इट इज अ पेस्ट ऑफ, जो हमारा यहाँ पे कैथोड है, कैथोड कौन रहेगा? एक मिनट, कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। कैथोड जो हमारा क्या रहेगा? पेस्ट
कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन, इनका पेस्ट बनाएंगे, कार्बन और मर्क्यूरी काम करेगा कैथोड का। एंड इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहेगा, अगेन इलेक्ट्रोलाइट इज strongly alkaline. Electrolyte is strongly alkaline and made up of a paste of, ये भी पेस्ट से बना, कौन से पेस्ट से बना हुआ, मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ KOH and ZNO. KOH and what, ZN, मतलब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो किससे बना रहेगा, strongly alkaline, made up of a paste of KOH and zinc oxide. KOH and zinc oxide, correct? अभी रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। अगर एक देखो यहाँ पे हमारा एनोड जिंक है, जिंक विथ मर्क्यूरी, सो अमालगमेटेड। कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन, and electrolyte is again a paste of KOH and zinc oxide. Now we'll write down the reaction taking place at anode. एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, oxidation. The reaction taking place at anode is a oxidation. So we'll write down the oxidation reaction. Okay, I'll write down the oxidation reaction. Now again I'll just show you in the detail, ये डिटेल में कैसे हो रहा है, मतलब रिएक्शन यहाँ पे हमारा देखो, हमारा एनोड यहाँ पे देखो, हमारा एनोड कौन सा है, जिंक अमालगमेटेड विद मर्क्यूरी, में ऐसा आएगा जिंक अमालगमेटेड विद मर्क्यूरी, मतलब जिंक के ऊपर मर्क्यूरी का कोटिंग है प्लस। ओके, लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगा देखो एक बार आप, तो एक मिनट, I'll show you here for mercury cell, or you can say mercury बैटरी। इसका रिएक्शन कैसे रहेगा, रिएक्शन कैसे होगा देखो यहाँ पे, मतलब जो हमारे पास OH माइनस है, OH माइनस हमारे पास अल्कली है ना, तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या मिलेगा हमें, OH। OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या मिलेगा, OH। ये OH प्रोड्यूस करेगा वाटर एंड ऑक्सीजन। देखो OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मिलेगा OH, OH से क्या बनेगा, वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, और बाद में जो हमारा जिंक जो एनोड है, एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसे बनेगा ZnO। और यहाँ पे क्लियर है, ये जिंक का चार्ज है 0 और यहाँ पे जिंक का चार्ज है +2, ये ऑक्सीडेशन हो गया, चार्ज ऑफ द जिंक एलिमेंट इज इंक्रीजिंग। इनको ऐड करें, लेकिन ऐड करने के पहले बैलेंस करो। यहाँ पे देखो कैसे कंसेप्ट था, हमारे पास अल्कली है, देखो यहाँ पे हमारा अल्कली है, KOH क्या प्रोड्यूस करेगा, K+ एंड OH माइनस, तो अल्कली, अल्कली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, OH। OH प्रोड्यूस करेगा वाटर एंड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये हमारा एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एट एनोड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज ऑक्सीडेशन, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज ऑक्सीडेशन। तो अभी देखो बैलेंस करो, Zn1 O1, तो यहाँ पे मैं हाफ करूंगा, हाफ इंटू 2 मतलब O। अगर मैं यहाँ पे हाफ O2 यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, हाफ। तो मैं इस इक्वेशन को हाफ से यहाँ पे मैं हाफ लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे हाफ लिखा, यहाँ पे मैं हाफ O2 यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी हाफ O2 ही प्रोड्यूस हुआ। तो अब बैलेंस करो, हाफ O2 मतलब 1O और 1O 2O, तो आई मल्टीप्लाई हियर बाय 2 H2 ये बैलेंस हुआ, और ये 2OH मुझे यहाँ से मिले हैं, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, अभी देखो इक्वेशन 2OH माइनस ने प्रोड्यूस किया था 2OH से मिला था वाटर एंड ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन ने इसका ऑक्सीडेशन करके Zn, इनको ऐड करोगे तो अभी देखो ये हाफ O2 और ये हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2OH और ये 2OH कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या है देखो एनोड पे आएगा Zn plus 2OH minus gives you Zn plus 2OH minus gives you ZnO plus water plus 2 electron. This is a reaction taking place at, and ये हमारा एनोड रिएक्शन है, so I'll write down directly here. देखो तुमने यहाँ पे मर्क्यूरी का देखो एनोड रिएक्शन क्या रहेगा हमारा Zn 2OH minus gives you ZnO plus water plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा रिएक्शन रहेगा, ऑक्सीडेशन रहेगा, ऑक्सीडेशन। और देखो या तुमने यहाँ पे मर्क्यूरी का क्या हो, मर्क्यूरी कुछ नहीं होता क्योंकि मर्क्यूरी का जिंक के ऊपर कोटिंग दिया था, तो जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा ये मर्क्यूरी मेल्ट होके अपने आप नीचे आ जाएगा, ये मर्क्यूरी मेल्ट होके कंटेनर में सेटल हो जाएगा, ये यहाँ पे रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे थे, खाली जिंक के ऊपर मर्क्यूरी का कोटिंग था। ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और मर्क्यूरी मेल्ट हो गया और उधर बाद में लास्ट में मिलेगा। अभी इनका मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 2OH ions are in the which state, aqueous, zinc oxide in the which state, solid, water in the which state, liquid। हमारा इक्वेशन बैलेंस है Zn 2O 2H 2H, चार्ज यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी चार्ज -2 है, इक्वेशन बैलेंस हुआ। नाउ विल राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। कैथोड कैथोड का रिएक्शन लिखना है। अभी कैथोड पे क्या होगा देखो, कैथोड का रिएक्शन वो मैं इस पर स्प्लिट अप करके बताता हूँ आपको। कैथोड, सो आई विल राइट डाउन हियर एट कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है KOH और ZnO का पेस्ट, मतलब इसमें वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी वाटर है, वाटर। तो सबसे पहले आएगा रिएक्शन हमारा, वाटर डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस एंड OH माइनस। बाद में एनोड से जो हमें इलेक्ट्रॉन मिला है वो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम हमेशा कौन करता है, H प्लस। तो H प्लस will accept electron to gives you H plus will accept electron to gives you what, H2। H2 तो यहाँ पे 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और बाद में हमारे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड है, देखो हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड है। कैथोड किससे बना हुआ था, हमारा कैथोड मर्क्यूरी और कार्बन है, लेकिन ये मर्क्यूरी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मर्क्यूरी ऑक्साइड हमारे पास है, करेक्ट। तो यहाँ पे मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO हमारे पास जो है, HgO का हमें करना है रिडक्शन, मतलब एडिशन करना हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ओके। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से O रिमूव करो, H2O को रिमूव करेगा, H2O को रिमूव करेगा तो आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, H2O मिलेगा। और यहाँ पे Hg है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। देखो रिडक्शन के अलग अलग मीनिंग है, अब ऑर्गेनिक में किया होगा या फिर आपके रिडॉक्स रिएक्शन में किया रहेगा। व्हाट इज द फर्स्ट वन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ओके, हाइड्रोजन ऐड कर, या रिमूवल ऑफ HgO से O रिमूव करो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और यहाँ पे Hg का चार्ज +2 है और यहाँ पे Hg का चार्ज 0 है, मतलब यहाँ पे Hg का चार्ज है +2 और यहाँ पे Hg का चार्ज है 0, ये भी रिडक्शन हुआ। तो HgO का रिडक्शन हो रहा है। अभी ये इक्वेशन बैलेंस करो, Hg1 Hg1 O1 O1 H2 H2, ये हम लोग यहाँ से यूज कर रहे हैं, H2 है, ये भी बैलेंस है। 2H प्लस हम लोग यहाँ से यूज करें, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो हमारे कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो 2H2O क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2H प्लस एंड 2OH माइनस। 2H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिडक्ट। हमारा कैथोड पे रिएक्शन क्या आएगा, देखो अभी देखो H2H2 कैंसिल हो जाएगा, 2H प्लस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे 1 वाटर है और यहाँ पे 2 वाटर है, तो इधर का एक वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आपके पास HgO प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वाटर बचा, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पे बचा Hg प्लस 2OH माइनस। ये हमारा रिएक्शन है, कहाँ पे हो रहा है ये रिएक्शन, हमारा कैथोड पे हो रहा है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि हमें ये सारे रिएक्शन लिखने की जरूरत, डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख सकते हो। डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखोगे कैथोड का, फिर HgO, करेक्ट, एक मिनट, HgO in the solid state plus water in the liquid state plus 2 electron gives you Hg in the liquid state plus 2OH minus in the aqueous state, and this is a reaction taking place at cathode। ये हमारा कैथोड का रिएक्शन, करेक्ट। तो भाई हमने यहाँ पे किया था HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg प्लस 2OH माइनस, ये रिएक्शन कैथोड पे। नाउ बैलेंस करो इक्वेशन को, Hg1 ओके, O1 प्लस 1 2 2O, H2 चार्ज, इस साइड में चार्ज आ रहा है -2 और यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है -2। अभी दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तब पहले सबसे क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन। whatever number of electron are released at the anode, same number of electron should be gained at the cathode, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 2OH माइनस है और यहाँ पे भी 2OH माइनस है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। एरो के पहले, यहाँ पे एरो के बाद, और इधर वाटर है H2O है एरो के बाद, और यहाँ पे वाटर एरो के बाद, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन क्या आएगा, देखो यहाँ पे जिंक अमालगम, मतलब जिंक के ऊपर अमालगम का कोटिंग किया, इसको हमने यूज नहीं किया, प्लस HgO in the solid state gives you ZnO in the solid state plus Hg in the liquid state। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये हमारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल रिएक्शन, ये हमारा सेल रिएक्शन, ओके, ये हमारा सेल रिएक्शन। बैलेंस करो, Zn1 Hg1 O1 O1, ये कोटिंग के लिए, इसलिए इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। Hg बैलेंस हो गया, ये खाली कोटिंग किया, क्योंकि हमारा एनोड कैसे था, जिंक अमालगमेटेड, मतलब जिंक के ऊपर मर्क्यूरी का कोटिंग दिया हुआ, इसलिए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जिंक अमालगमेटेड, ओके। ये हमारा सेल हुआ। अभी इसके बारे में और तो 2-3 पॉइंट लिख देते हैं हम लोग। क्या पॉइंट लिखोगे आप इसके बारे में, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आई कैन से हियर, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हुआ। ओवरऑल सेल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे द ओवरऑल reaction involves only solid substance। यहाँ पे जो रिएक्शन मोस्टली जो सब्सटेंस है वो कौन से फॉर्म में, देखो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, खाली मर्क्यूरी लिक्विड है। ओवरऑल रिएक्शन involves only solid substance। Second,
there is no change in electrolyte composition. मतलब electrolyte composition during operation. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो, नो चेंज इन कंपोजिशन मतलब देखो, हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में लेड एक्यूमुलेटर यूज किया था, हमारे कार बैटरी जिसे हम लोग बोलते हैं, कार बैटरी को जब हम चार्जिंग करके लेके आते तो बैटरी में क्या होता है? एसिड. लेकिन जब हम लोग बैटरी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो एसिड कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड सिंस एसिड कन्वर्ट इनटू वाटर, क्या हो रहा है? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारी बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज 2 होता है वो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता है. मतलब अगर आपको याद रहेगा, अगर लास्ट लेक्चर में हमने किया था कार बैटरी में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण बैटरी का वोल्टेज भी कम होता है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है? KOH, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, बिकॉज दे आर इन द, ये तो सॉलिड स्टेट में ही है, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है. So there is no change in the electrolyte composition during the operation, and therefore mercury battery, ये जो हमारा बैटरी है, mercury battery, or I can say mercury cell provides more constant voltage. मतलब यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होता है वो चेंज नहीं होता. वोल्टेज हमेशा कितना मिलेगा हमें? 1.35 वोल्ट. यहाँ का जो वोल्टेज है वो कम नहीं होगा. यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो कम नहीं होगा, वोल्टेज विल रिमेन्स द कांस्टेंट. और कितना वोल्टेज रहेगा हमारा? 1.35 वोल्ट. करेक्ट. एंड नेक्स्ट, it has considerably higher capacity and longer life than dry cell. मतलब हमारा जो नॉर्मल ड्राई सेल जो किया था लास्ट लेक्चर में, उसके कंपैरिजन में इसका भी कैपेसिटी कैसे? हायर कैपेसिटी है और लाइफ भी लॉन्गर है. मतलब हमारे जो नॉर्मल सेल है उनका लाइफ बहुत कम होता है और कैपेसिटी भी लो होता है, लेकिन उनके कंपैरिजन में इसका कैपेसिटी और इसका लाइफ ज्यादा है. ओके. एंड देन लास्ट वी कैन से यूजेस. इनके यूजेस क्या है वो हमें देखने हैं. यूजेस ऑफ मर्क्यूरी सेल के यूजेस क्या है? तो व्हाट इज द फर्स्ट यूज? फर्स्ट, it is used in hearing aids. It is used in hearing aids. जो अपना hearing aids है, कान के मशीन्स वगैरह जो उनके अंदर यूज है, they are used in the hearing aids. Then they are used in electric. They are used in electric watches, and they are used in pacemakers. They are used in so here use, what are the uses? They are used in the hearing aids, they are used in the electric watches, and they are used in the pacemakers. Correct. तो ये उनके यूजेस है मर्क्यूरी सेल के बारे में. आई विल रिपीट हियर. हमारा ये प्राइम एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में प्रिंट किया है सेकेंडरी, लेकिन एक्चुअली ये सेल प्राइमरी, मतलब ये चार्जेबल नहीं, प्राइमरी सेल. एनोड जिंक है, जिंक के ऊपर मर्क्यूरी का कोटिंग है. कैथोड मर्क्यूरी और कार्बन का पेस्ट है. इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट है KOH और ZNO का.
यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहाँ पे Zn का चार्ज 0 है और यहाँ पे Zn+2 ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मर्क्यूरी का चार्ज +2 है और यहाँ पे मर्क्यूरी 0 हो रहा है, ये रिडक्शन है। दोनों को ऐड करके मिला सेल रिएक्शन, ये हमारा सेल रिएक्शन। और यहाँ पे क्या लिखा, ऑल द substances are in the solid state, there is no change in the electrolyte concentration, the cell will produce the constant voltage and it has a higher capacity and longer life than the other dry cell. And uses, it is used in the hearing aids and in electric watches and in pacemakers. ये हमारे दो सेल के बारे में स्टडी। अब इस सेल में आपको कोई डाउट है क्या, पूछना चाहते हो? सर हाँ ये सर वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो ना सर। कौन सी केमिकल रिएक्शन? तो जो आपने ये Zn का लिखा है ना सर, ये अराइव कैसे हुआ सर, एक बार सिखा दो ना। ये हाँ सर। एक मिनट, सबसे पहले एनोड पे क्या हो रहा है, हमारे पास अल्कली है, अल्कली से क्या मिला, OH माइनस। OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, OH। यहाँ पे माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, OH। ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे, एक OH दूसरे OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, वाटर एंड ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर एंड ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन मिलने के बाद ये ऑक्सीजन Zn का ऑक्सीडेशन करेगा, ये ऑक्सीजन Zn का ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा, ZnO बनेगा। अब ऑक्सीडेशन दो तरह से बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जिंक का चार्ज 0 है और यहाँ पे जिंक का चार्ज +2 है तो भी ऑक्सीडेशन हुआ। और फिर मैंने तीनों स्टेप्स को ऐड कर दिया, लेकिन ऐड करते समय ये 2OH कैंसिल हो गया, हाफ O2 कैंसिल हो गया, और ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन। तो आप जब एग्जाम में लिखोगे या कोई भी एग्जाम में लिखोगे, आपको पूरा नहीं लिखना, आपको खाली यही इक्वेशन लिखना है, ये खाली मैंने आपको समझने के लिए दिया। ओके, उसके बाद जो कैथोड है, कैथोड कैसा रिएक्शन हुआ, ये हमारा कैथोड का रिएक्शन है ये। और लेकिन ये रिएक्शन कैसे हो रहा था कि हमारे पास वाटर था, वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, H+ एंड OH माइनस। तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा, H+ करेगा। तो H+ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, HgO का रिडक्शन करेगा, मतलब HgO को Hg में कन्वर्ट करेगा तो H2O बनेगा। रिडक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे Hg का चार्ज +2 है और यहाँ पे Hg का चार्ज 0 है, तो Hg का रिडक्शन हो रहा है। दूसरा, HgO से O रिमूव करना मतलब भी रिडक्शन हुआ, HgO में H2 ऐड करना मतलब भी रिडक्शन हुआ। तो मतलब अलग अलग तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारा रिएक्शन रिडक्शन ही है। और फिर हम लोगों ने H+ कैंसिल हो गए, बिकॉज यहाँ पे फॉर्म हो गए, यहाँ पे यूज कर, H2 यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे यूज कर, तो ओवरऑल रिएक्शन। और यहाँ पे 2 H2O थे और यहाँ पे 1 H2O था, तो ये 1 H2O ये, और यहाँ का 1 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे, HgO एंड H2O +2 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड Hg और 2OH माइनस, ये बच गया। ये हमारा कैथोड है। तो एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आपको इन डिटेल में बताना ही नहीं, आपको खाली मेन रिएक्शन ही लिखना है, एनोड रिएक्शन लिखना है और कैथोड रिएक्शन। ओके सर। ओके, और किसी कोई डाउट है क्या? यस, ठीक है, नो डाउट, देन नो प्रॉब्लम। यहाँ पे और एक सेल है, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आगे अगर अभी हम स्टार्ट कर दे तो खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब 10-15 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगा। सो विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।